Hello, we will start with the next our new topic, that is a utility. We'll start by defining what is a utility. Utility can be defined as the bond satisfying power of a commodity. Bond satisfying power of a commodity is called as an utility, or capacity of a commodity to satisfy human want. What is utility? Capacity of a commodity to satisfy human want is called as an power utility. Now, what is the meaning of capacity of a commodity? Any commodity which satisfies our want does possess the utility. It can be anything. It can be your cloth. Why we are demanding the cloth? Because cloth satisfies our utility. Now, at present, we are all using mobile phone, tablet, tab to attend the lecture. Why we are using? Because it gives us the utility. So anything which we demand or which we use all those commodities. Why we are using or why we are demanding such a commodity? Because it gives us the utility. हम लोग कोई भी कमोडिटी क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि उसमें utility है. So any commodity which satisfies our want, any commodity which satisfies our want, that means what? It possesses the utility. The power of a commodity to satisfy human want is called as an utility. So any commodity which satisfies our want, it has utility. For example, we are using the pen. Why we are using the pen? Because it has a utility. It gives us the utilities because pen satisfies our want. So therefore, we can say that the pen has utility. So any commodity which satisfies our want, any commodity which satisfies our want, it possesses the utility. Now we'll see the different characteristics of utility. Now what are the features of utility? Utility, first we can say that utility is a subjective concept. Now why it is called as a subjective concept? Subjective. Subject means what? The person or the place. Utility, why it is called as a subjective concept? Because it is related to the subject. Subject means what? The person or the place where the commodity is consumed. So it is related to the person and the place. So if the person changes or if the place changes, then utility will also change. Therefore, we can say that utility is subjective concept. For example, we can give the example of any person. Suppose the books. The books will give the utility only to the literate person. अभी books का utility किसको है? Literate person को. And if the person is illiterate, he will not get any utility from the books because he cannot read the books. So therefore, here, if the person changes, utility also changes. So therefore, we can say that utility is a subjective concept. Then next, because why it is subjective concept? Because again, the likes, dislikes of the person or likes, dislikes differs from person to person. So therefore, utility will also change from person to person. Next feature, we can say that utility is a relative concept. Now, why it is a relative concept? Because it is related to the place where the commodity
changes. It is related to the place and the season. Now, if the hello, if it is next feature, we can say that it is a relative concept. Why it is a relative concept? Because it is related to the place or the time. If the place changes or the time or season changes, the utility of a commodity will also change. So therefore, it is called as a relative concept. Because why it is relative? Because it is related to the time and the place where the commodity consumed. Okay, so why it is a relative concept? Because it is related to the time, place, or the season. So therefore, it is called as a relative concept. We can give the example of umbrella. Now, umbrella gives us the utility during the rainy season. अभी umbrella का utility कभी होगा अगर when during the rainy season. अभी rainy season में हम लोग umbrella use करें. If the season changes, अगर season change हो गया during the summer season, we are not going to use the umbrella. क्यों? क्योंकि season change हो गया, उसका utility change हुआ. So therefore, the utility of a commodity, it is related to the place or the time. Time change हो गया, season change हो गया, place change हो गया. The utility also changes. Therefore, it is called as a relative concept. Next feature of utility, that utility is a psychological concept. Utility क्या है? Psychological concept. Now why it is called as a psychological concept? अब ये psychological concept क्यों है? Because it is related to the likes and dislikes of a person. अभी ये किसके ऊपर डिपेंड है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर. If the likes, dislikes changes, the utility also changes. It's a feeling which we are having in a mind. Utility क्या है? Feeling है जो हमारे माइंड में. तो इसीलिए इसको कहते हैं psychological concept. Now suppose if we purchase a new book. अभी न्यू बुक परचेस किया या न्यू ड्रेस हमने परचेस किया. अभी उन ड्रेस से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? Can we measure? We cannot measure. We cannot quantify it. अभी हम लोग ये नहीं बता सकते कि न्यू ड्रेस या न्यू बुक्स परचेस करने के बाद हमको कितना खुशी मिली. तो इसीलिए सिंस इट कैनॉट बी मेजर्ड इन अ नंबर, यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल नंबर्स में बता नहीं सकते. क्यों? बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. It is a feeling which we are having in a mind which cannot be quantified. ये feeling है, उसको हम लोग quantified नहीं कर सकते, उसको numbers में नहीं बता सकते. Okay, so therefore it is called as a psychological concept. तो इसीलिए utility क्या है? Psychological concept. Next feature of utility, that it differs from pleasure. Utility differs from pleasure. Pleasure means what? Happiness. Pleasure का मतलब क्या होता है? Happiness, खुशी. Now, why it differs from pleasure? The commodity which gives us the utility did not gives us the pleasure. यानी कि जो चीज हमको utility देती है, utility means what? Want, satisfying power of a
कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो अभी जो कमोडिटी हमारी वांट, वांट यानी कि जरूरत है, दोज कमोडिटी विच सेटिस्फाइज अवर वांट, यानी कि जो कमोडिटी हमारी जरूरत पूरी करती है, जरूरी नहीं कि उससे हमको प्लेजर मिले। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर नॉट वेल, अभी हम बीमार है, वेल, नॉट फीलिंग वेल, इन सच ए सिचुएशन वी हैव टू गो टू द डॉक्टर। हम लोग वो सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाएंगे। देन डॉक्टर गिव्स अस द बाइटर मेडिसिन। डॉक्टर क्या करेगा? अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो ही विल गिव्स अस द बाइटर मेडिसिन। अभी मेडिसिन, कड़वी दवाई, दवाई खाने के बाद हमको खुशी नहीं मिलती है, प्लेजर नहीं मिलता, बट इट सेटिस्फाइज अवर वांट। लेकिन वो जो कड़वी दवाई है हमारी वांट पूरी करती है। सो देयरफॉर सिंस इट satisfies our want, it possesses the utility. So therefore we can say that utility differs from pleasure. Pleasure means what? Happiness. Utility or pleasure यानी कि happiness, both are the different concept. यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, और प्लेजर का मतलब है हैप्पीनेस। सो जो कमोडिटी हमारी वांट पूरी करी है, दैट कमोडिटी नीड नॉट गिव्स अस द प्लेजर। जो हमारी ज़रूरत पूरी कर रही है, ज़रूरी नहीं कि वो हमें प्लेजर यानी कि हैप्पीनेस दे। Next feature of utility, that utility differs from usefulness. Utility or usefulness both are the different concepts. Utility और usefulness दोनों different concept है। तो अभी utility और usefulness में क्या difference है? तो पहले utility यानी कि क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि हमारी जरूरत पूरी करने की जो कैपेसिटी है कमोडिटी की, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूटिलिटी। एंड यूजफुलनेस, यूजफुलनेस मीन्स व्हाट? वेदर इट इज बेनिफिशियल, यूजफुल यानी कि बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। अभी वो कमोडिटी हम जरूरी नहीं, जो चीज हमारी वांट पूरी कर रही है, जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हो, बेनिफिशियली हो हमारे हेल्थ के लिए। नाउ वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। अभी अल्कोहल, ड्रंकर्ड, अभी ड्रंकर्ड और अल्कोहल, अभी अल्कोहल सेटिस्फाइज द वांट ऑफ द ड्रंकर। अभी अल्कोहल क्या करता है? ड्रंकर्ड यानी कि जो शराबी आदमी है, अल्कोहल शराबी आदमी की वांट पूरी करता है। ओके, तो यानी कि अल्कोहल गिव्स द यूटिलिटी टू द ड्रंकर्ड। इसका मतलब अल्कोहल से ड्रंकर्ड को यूटिलिटी मिलती है। लेकिन क्या अल्कोहल हेल्थ के लिए अच्छा है? नो, नॉट एट ऑल। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट अफेक्ट आवर हेल्थ। वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन ये ड्रंकर्ड की वांट पूरी करी। सो देयरफॉर अल्कोहल gives the utility to the drunkard, but it is not useful to the health. लेकिन भले ही अल्कोहल ड्रंकर की यूटिलिटी, ड्रंकर्ड की जरूरत पूरी करा है, यानी कि यूटिलिटी दे रहा है, बट इट इज नॉट यूजफुल टू देयर हेल्थ। उनके हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। Understand? So this is the difference between utility and usefulness. Okay, यानी कि जो चीज हमारी वांट पूरी करती है, तो अगर वो वांट पूरी करती है, दैट मीन्स व्हाट? इट गिव्स अस द यूटिलिटी। वो उसमें यूटिलिटी है। लेकिन जरूरी नहीं जो चीज हमारी यूटिलिटी यानी कि वांट पूरी कर रही है वो हमारे लिए यूजफुल भी रहे। सो
Therefore, we can conclude that utility and usefulness both are the different concept. तो इस तरह से utility और usefulness ये दोनों different concept है. Next feature that it differs from satisfaction. Utility differs from satisfaction. अभी यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. यूटिलिटी क्या है? वांट satisfying power of a commodity. That means what? Any commodity which satisfies our want. कोई भी commodity अगर हमारी want पूरी करती है तो इसका मतलब क्या है? उसमें utility है. Okay, then satisfaction. तो अभी यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में क्या डिफरेंस है? अभी सेटिस्फैक्शन हमको कभी मिलेगा? ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. ओके, अगर वो कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करेंगे तो ही हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ओके, और दैट कमोडिटी में पोजेस द यूटिलिटी इवन बिफोर द कंजम्पशन. लेकिन भले ही हमने यो कमोडिटी कंज्यूम नहीं किया, अगर भले हमने वो कमोडिटी कंज्यूम नहीं किया लेकिन फिर भी उसमें यूटिलिटी है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन. क्या डिफरेंस है? सेटिस्फैक्शन यानी कि क्या? हम लोग कभी सेटिस्फाई होंगे अगर हमारी जरूरत पूरी होगी. लेकिन यूटिलिटी क्या है? कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट. यानी कि कोई भी चीज अगर हमारे पास है, अगर भले उसको हमने यूज नहीं किया या कंज्यूम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसमें यूटिलिटी रहती है. और सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा? ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. हमको सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा? ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. और यूटिलिटी कभी मिलेगी? इवन बिफोर द कंजम्पशन. यानी कि कंजम्पशन के पहले यूटिलिटी रहती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी रहेगा? ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. नाउ सपोज वी ऑर्डर द पिज्जा ऑनलाइन. अभी हमने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया, अभी पिज्जा घर पे आ गया, बट वी आर नॉट येट कंज्यूम इट. लेकिन हमने अभी तक उसको कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन भूख तो लगी है. वी आर फीलिंग हंग्री. दैट मीन्स व्हाट? पिज्जा पोजेस द यूटिलिटी फॉर अस. अभी ऑनलाइन पिज्जा आ गया है लेकिन हमने कंज्यूम नहीं किया, लेकिन हमको भूख लगी है. तो इसका मतलब पिज्जा में यूटिलिटी है. लेकिन हम लोग सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा? खाने के बाद. ओके, हम कभी सेटिस्फाइड होंगे, हमारी भूख कभी खत्म होगी? व्हेन वी कंज्यूम इट. तो सेटिस्फैक्शन वी विल गेट ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. वो पिज्जा अगर हम लोग खाएंगे तभी हमारी भूख खत्म हो जाएगी, भूख मिटेगी. इसका मतलब हमको सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा? ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. लेकिन यूटिलिटी, द कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बिफोर द कंजम्पशन. लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा? ओनली आफ्टर द कंजम्पशन. So this is the difference between utility and satisfaction. The commodity possesses the utility even before the consumption, लेकिन satisfaction कभी होगा? Only after the consumption. Okay, so this is the difference between. Therefore, utility differs from satisfaction. इसीलिए utility और satisfaction में difference है. Next feature of utility, that utility depends upon intensity of work.
यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? इंटेंसिटी ऑफ वांट। नाउ इंटेंसिटी यानी कि क्या, कितनी ज्यादा जरूरत है। ओके, इंटेंसिटी मीन्स व्हाट, कितनी ज्यादा जरूरत है, उसके ऊपर वो कमोडिटी की यूटिलिटी डिपेंड्स रहती है। हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी द यूटिलिटी। लोअर द इंटेंसिटी, लोअर विल बी द यूटिलिटी। यानी कि अगर इंटेंसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो यूटिलिटी भी ज्यादा रहेगी, अगर इंटेंसिटी अगर कम रहेगी तो यूटिलिटी भी कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग खेलने के लिए बाहर जाते हैं ग्राउंड में, अभी कई घंटों तक हमने स्पोर्ट्स खेला, चलो फुटबॉल खेल के आ गए, लेकिन बहुत पसीना पसीना हो गए धूप में खेलने के कारण, हमको बहुत प्यास लगती है, वी आर फीलिंग वेरी थर्स्टी। तो उस समय हमारी इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी कि हम लोग बहुत खेले, धूप में खेले, मस्ती किया, तो हमारी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। वो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्यास लगी रहती है, हम लोग क्या करते हैं, वी टेक मोर देन 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक से ज्यादा ग्लास हम लोग पानी पीते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी टाइम में इन जनरल हम लोग केवल 1 ग्लास या 1 घूंट पानी पी के शांत बैठते हैं। तो ये डिफरेंस है ये इंटेंसिटी में। यानी कि यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? इंटेंसिटी ऑफ वांट। क्यों हम लोग एक से ज्यादा ग्लास पानी पीते हैं? क्यों ज्यादा भूख लगती है तो हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं, और जब भी भूख नहीं रहती तो खाना नहीं खाते या कम खाते? बिकॉज हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट कभी ज्यादा रहती है, हम लोग बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं या तो बहुत थर्स्टी रहते हैं। जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ज्यादा यूटिलिटी, जितनी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी उतना ज्यादा हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी द यूटिलिटी। तो ऐसी सिचुएशन में वी कंज्यूम मोर टू गेट सेटिस्फाइड। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, सो हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी द यूटिलिटी, लोअर द इंटेंसिटी, lower will be the utility. So here, so in this way, utility depends upon the intensity of form. इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? इंटेंसिटी के ऊपर। हायर द इंटेंसिटी ऑफ वांट, हायर विल बी द यूटिलिटी। ओके, क्लियर अप टू दिस? नाउ नेक्स्ट फीचर। अभी नेक्स्ट फीचर क्या है? दैट cannot be measurable cardinally. Utility cannot be measure cardinally. यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्यों इसको काउंट नहीं कर सकते? बिकॉज हमने पहला फीचर देखा क्या, इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्यों इसको काउंट नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल यानी कि ये फीलिंग है which we are having in a mind, and therefore we cannot measure anybody's mind, what is going on in anybody's mind. हम लोग किसके माइंड में, किसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो therefore we can say that it cannot be count in a number, it cannot be measured in a number। उसको हम लोग नंबर्स दे नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं काउंट कर सकते? बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एंड being a psychological concept, it cannot be measured in a number। ओके, तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग नंबर्स नहीं दे सकते। For example, if you consume the apple, you are feeling very hungry and you consume a apple। अभी आपने एप्पल कंज्यूम किया, बहुत भूख लगी थी, आपने क्या किया? एप्पल कंज्यूम किया। तो अभी एप्पल से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला?
आप नंबर में बता सकते हैं क्या, मुझे 1 यूनिट इतना सेटिस्फेक्शन मिला, या 2 यूनिट इतना सेटिस्फेक्शन मिला, या 3 नंबर इतना सेटिस्फेक्शन मिला, या 20 100 इतना सेटिस्फेक्शन मिला. We cannot say that how much satisfaction we derived from the consumption of commodity. उसको नंबर नहीं दे सकते. क्यों? सेटिस्फेक्शन हमारा क्या है? फीलिंग है, which we are having in mind. So therefore, which cannot be quantified. ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट रहने के कारण उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको नंबरिंग नहीं कर सकते. So therefore, we can say that utility is a psychological concept. Being in a psychological concept, it cannot be measured cardinally. उसको नंबर कार्डिनली यानी कि क्या, नंबर्स में उसको बता नहीं सकते. कार्डिनली मीन्स व्हाट, उसको नंबर नहीं दे सकते 1 2 3, मुझे 10 नंबर इतना सेटिस्फेक्शन मिला, या 100 इतना सेटिस्फेक्शन मिला, 100% 200% सेटिस्फेक्शन मिला. वी कैनॉट क्वान्टिफाई, उसको नंबरिंग नहीं कर सकते. Therefore, we can say that utility cannot be measured cardinally. So these are the features of utility. So today we have done the meaning and features of utility. The meaning क्या है? What is the definition of utility? Utility is a power of a commodity to satisfy human want. Okay, क्या है utility? Power of a commodity to satisfy human want. Or in other word, we can define utility as want satisfying power of a commodity. Okay, यानी कि कोई भी commodity अगर हमारी want यानी कि क्या, जरूरत पूरी करती है, तो उसका मतलब वो commodity में that commodity possess the utility. यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो commodity में utility है. तो फीचर्स हमने देखे. फीचर्स क्या है? दैट पहला हमने देखा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पर्सन चेंज हो गया, यूटिलिटी ऑल्सो चेंज. अभी वो कैसे? दैट नाइफ गिव्स द यूटिलिटी टू द हाउस वाइफ फॉर चॉपिंग वेजिटेबल्स. अभी जैसे नाइफ है, अगर हाउस वाइफ के हाथ में नाइफ रहेगा तो वो क्या करेगा? वेजिटेबल्स काटेगी. वही नाइफ अगर किसी क्रिमिनल के हाथ में जाएगा तो वो क्या काटेगा? ही विल कट द पर्सन, पीपल, मर्डर करेगा. तो यानी कि पर्सन चेंज हो गया, यूटिलिटी ऑल्सो चेंज. बुक्स किसको यूटिलिटी देगा? लिटरेट पर्सन. बट इफ इट ही इज इलिटरेट, अगर वो अनपढ़ रहेगा तो उसको यूटिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी. नेक्स्ट फीचर हमने देखा रिलेटिव कॉन्सेप्ट. क्यों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द टाइम एंड द प्लेस वेयर द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड. अगर टाइम यानी कि सीजन चेंज हो गया या प्लेस चेंज हो गया, देन यूटिलिटी भी क्या होगी? चेंज होगी. नेक्स्ट, इट्स ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये फीलिंग है विच वी आर हैविंग इन अ माइंड. ओके, सबका जो लाइक्स डिसलाइक्स वो डिफरेंट रहता है. अगर वो चेंज हो गया, यूटिलिटी विल आल्सो चेंज. इसको नंबर भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. प्लेजर यानी कि हैप्पीनेस. तो डिफर्स फ्रॉम प्लेजर क्यों है? डिफरेंस मीन्स डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर क्यों है? क्योंकि यूटिलिटी क्या है? पॉइंट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. और प्लेजर क्या है? हैप्पीनेस. जरूरी नहीं जो कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे, जो हमारी वांट पूरी करी है, उससे हमको हैप्पीनेस मिलेगा. जैसे बीमार है, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने अगर इंजेक्शन लगा दिया तो हम लोग को खुशी मिलेगी? नहीं. स्टार्टेड क्राइंग, उससे हैप्पीनेस नहीं मिलेगा. लेकिन वो इंजेक्शन हमको क्या देगा? यूटिलिटी देगा, हैप्पीनेस नहीं देगा.
नेक्स्ट, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. जरूरी नहीं कि दोज द कमोडिटी विच यूजेस द यूटिलिटी, यानी कि जो कमोडिटी हमारी जरूरत पूरी कर रही है, जरूरी नहीं कि वो यूजफुल भी रहे. देयरफॉर वी कैन से दैट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. जो चीज हमारी वांट पूरी कर रही है उसमें यूटिलिटी है. लेकिन जरूरी नहीं वो जो चीज हमारी वांट पूरी कर रही है वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल ही रहे. We had given the example of alcohol. Alcohol gives the utility to the drunkard, लेकिन it is not at all useful to their health. अल्कोहल शराबी की जरूरत पूरी करती है, इसलिए उसमें यूटिलिटी है, लेकिन इट इज नॉट यूजफुल, वो यूजफुल नहीं है. इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. नेक्स्ट, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों डिफरेंट है. सेटिस्फैक्शन को भी मिलेगा ओनली आफ्टर कंजम्पशन, लेकिन कम्युनिटी में पोजेस द यूटिलिटी इवन बिफोर द कंजम्पशन. नेक्स्ट, इट इज डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट. हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी द यूटिलिटी. लोअर द इंटेंसिटी, लोअर विल बी द यूटिलिटी. जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी ज्यादा यूटिलिटी. नेक्स्ट, कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली. यूटिलिटी हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते. क्यों नंबरिंग नहीं कर सकते? बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल. ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. तो ये फीचर्स हो गए. नेक्स्ट लेक्चर मंडे को हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी करेंगे. ओके,